In the previous video, I have explained you a small part of the story. In that, I have told you that she went to London to learn music in the Royal Academy of Music. This was the academy where she was going to learn music. She was basically from Scotland. Scotland is in Europe. Scotland was a farm rural area, whereas London was a fast moving city, so it would be difficult for her to adapt that fast moving life. But moreover, this challenge to her was a small one, because she was profoundly deaf. Profoundly means absolutely deaf. Then we talked about when her mother Isabel recollected a incident about Evelyn when she was 8 years old. She told that her deafness was gradual, it was not sudden, it was in phases. And in the last paragraph we read that doctor advised her parents to get her a hearing aid, that is an instrument, and to shift Evelyn to a deaf school. When she heard this, when she came to know about this, she was shattered, and for her, life suddenly became colorless. That means it turned black. Now let's read further from paragraph 3. The line says, but Evelyn was not going to give up. This shows that Evelyn had determination. ये समझ में आता है कि इससे कि एवलिन के अंदर एक डिटर्मिनेशन थी. Although Evelyn got such a shocking news, एवलिन को इतनी शॉकिंग न्यूज़ मिली, बट फिर भी वो डिटरमाइंड थी एंड शी नेवर गेव अप. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन सेज शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. परस्यू मीन्स टू फॉलो. सो एवलिन बहुत पैशनेट थी टुवर्ड्स हर ड्रीम्स अबाउट म्यूज़िक. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो भी चैलेंजेस उसके लाइफ में आए. दिस न्यूज़ ऑल्सो डिड नॉट ब्रेक हर. इस न्यूज़ ने भी उसको तोड़ा नहीं कभी भी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लिव लाइफ लाइक नॉर्मल पीपल एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. वो बहुत डिटरमाइंड थी कि वो लाइफ जो जिएगी वो नॉर्मल पीपल की तरह ही जिएगी, और उसका जो पैशन था फॉर म्यूज़िक दैट नेवर एंडेड बिकॉज ऑफ such a small challenge in her life. Okay, let's read further. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play too. Xylophone एक musical instrument होता है with row of wooden bars of different lengths. तो वहाँ पे क्या होता है, वुडन बार्स होती हैं जिसको हम बजाते हैं, हम स्टिक से बजाते हैं जिसको, तो वो हम xylophone बोलते हैं. XYLOPHONE. So this line means that when Evelyn saw a girl playing xylophone, Evelyn ने एक बार एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसका भी मन करा कि वो भी बजाए xylophone. Okay? The next line says, let's read it. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. So, percussionist कौन होते हैं? A person who plays drum, तबला, etc. Person who plays different musical instruments. जिनको बहुत सारे instruments बजाने आते हैं, उनको हम बोलते हैं percussionist. 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 ठीक है. तो जितने भी टीचर्स थे, वन हैंड Evelyn's teacher discouraged her because they knew that she could not hear and hearing was important for music. तो म्यूज़िक के लिए सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत सारे टीचर्स को पता था कि ये जो म्यूज़िक के लिए सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने उसको डिस्करेज किया. बट एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स. उन्होंने एवलिन का पोटेंशियल जो था, जो पोटेंशियल था वो देखा. पोटेंशियल होता है क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड. So he saw that Evelyn was very passionate about music, and so he decided something. तो उन्होंने कुछ डिसाइड करा. अब
रॉन फॉब्स परक्यूशनिस्ट थे, मीन्स उनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे, ठीक है. ही वॉज ऑल्सो अ म्यूजिशियन. ओके, द नेक्स्ट लाइन सेज Herbigin was tuning two large drums to different notes. ठीक है. Now what happened that Ron Forbes thought that he would teach Evelyn to feel music. तो रॉन फॉब्स ने ये सोचा कि वो एवलिन को सिखाएंगे कि म्यूज़िक फील कैसे किया जाता है. He took two large drums and he tuned them to different tones. उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स लिए और उनको डिफरेंट नोट्स के साथ ट्यून करा. ड्रम्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ही ट्यून्ड देम. ही ट्यून्ड ईच ड्रम टू डिफरेंट नोट. उन्होंने सब दोनों जो ड्रम्स थे उनको अलग अलग नोट से ट्यून किया था. सो द साउंड प्रोड्यूस बाय द ड्रम्स वॉज डिफरेंट. तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था दोनों ड्रम से वो दोनों अलग अलग थे. सो इट वॉज डिस्टिंक्ट. बोथ द ड्रम्स मेड डिफरेंट साउंड्स. देन ही टोल्ड एवलिन. ठीक है, तो ये जो दोनों जो साउंड्स थे वो डिफरेंट थे दोनों ड्रम्स से. और देन व्हाट ही टोल्ड टू एवलिन, लेट्स रीड. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. सो उन्होंने उनसे एवलिन को क्या एडवाइस किया कि ये जो म्यूज़िक है उसको अपने ईयर्स से सुनने की कोशिश मत करो. कोशिश करो इसको सेंस करने की. ट्राई टू सेंस इट. ट्राई टू फील द म्यूज़िक some in other way. Okay, then says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drums but the waist up and the lower one from the waist down. Now the middle of your waist is the middle of your body is called waist. ठीक है, कमर को हम वेस्ट कहते हैं, वो हमारा मिडल ऑफ द बॉडी है. तो वेस्ट अप मीन्स वेस्ट के ऊपर का बॉडी पार्ट एंड वेस्ट डाउन मीन्स वेस्ट के नीचे का बॉडी पार्ट्स. सो नाउ एज रॉन हैड ट्यून्ड बोथ द ड्रम्स एट डिफरेंट नोट्स. जैसे कि हमने पता है कि जो दोनों ड्रम्स थे वो अलग अलग नोट्स में ट्यून करे गए थे. जो अपर पार्ट ऑफ Evelyn's body above the waist could feel the higher notes of the drums. तो जो उनका अपर पार्ट था वेस्ट के वो हायर नोट्स जो ड्रम के थे वो उसकी वाइब्रेशन फील कर सकता था. और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, द पार्ट डाउन फ्रॉम द वेस्ट could feel the lower notes of drum. Okay, let's read further. The next line says, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. So उन्होंने ये exercise repeat कराई. This is how Evelyn can listen to sound although she cannot hear. उनको वो नहीं सुन सकती थी but still she can listen to the sound. She can sense different notes in different parts of the body. अब वो सेंस कर सकती थी अलग अलग नोट्स अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन सेज, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. द रेस्ट वॉज sheer determination and hard work. So Ron Forbes taught Evelyn to respond to different sounds. Different parts of Evelyn's body responded to different sounds, and this is how she could identify the sounds and the different vibrations. तो यही एक तरीका था जिससे कि जो रॉन फॉब्स ने एवलिन को सिखाया था, जिससे कि वो अलग अलग साउंड्स, अलग अलग नोट्स अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू सेंस कर सकती थी, उनके वाइब्रेशन सेंस कर सकती थी. नाउ वंस शी कुड आइडेंटिफाई द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, द हर्डल हैड बीन ओवरकम. और जैसे ही उन्होंने अपनी सारी साउंड्स और वाइब्रेशंस आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, उनकी जो हर्डल थी, मतलब उनका जो चैलेंज था वो उन्होंने पूरा कर लिया. एंड एवलिन्स करियर वेंट अपवर्ड एंड ड्यू टू दिस उनका जो करियर था इन म्यूज़िक वो ऊपर जाता गया, मतलब सक्सेस उनको मिलती गई. एज शी हैड डिटर्मिनेशन टू बिकम फेमस, अ गुड म्यूजिशियन, एंड ऑल्सो शी
डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, तो जैसे जैसे उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई, पैशन दिखाया, उस वर्क हार्ड किया टुवर्ड्स टू बिकम फेमस, टू बिकम अ गुड म्यूजिशियन, उन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया और धीरे 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 उन्हें सक्सेस मिलती गई. Okay, so the next line says, she never looked back from that point onwards. This is the fourth paragraph. So इस लाइन का मतलब है कि जब एक बार एवलिन अपनी चैलेंजेस, अपनी हर्डल्स ओवरकम करना सीख गई, उन पर विक्ट्री पाना, उन पर जीत पाना सीख गई, शी स्टार्टेड सेंसिंग द डिफरेंट साउंड्स थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, शी प्रोग्रेस्ड इन हर करियर. तो जैसे ये चीज़ उन्होंने अपनी ये चैलेंज ओवरकम किया, जैसे वो डिफरेंट पार्ट्स से अब डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट नोट्स को फील करना सीख गई, वो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनका करियर सक्सेसफुल होता गया और होता गया. ठीक है. द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशंस, जिसमें बहुत सारे म्यूजिशंस होते हैं, उस ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं. ORCHESTRA. यूथ का क्या होता है, मतलब क्या होता है? यंग पीपल, पीपल हु आर लाइक इन कॉलेज और हाई स्कूल में जो होते हैं उनको हम यूथ बोलते हैं. लेट्स रीड फर्दर. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 she had decided to make music her life. So as Evelyn toured United Kingdom and performed with a youth orchestra, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम गई, वो एक ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करने के लिए, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा का पार्ट बनी वो. बाय द टाइम एवलिन रीच द एज ऑफ 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. तो जैसे जैसे वो 16 ईयर्स की हुई, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी लाइफ म्यूज़िक पे दे देंगे, अपनी पूरी लाइफ वो अपने म्यूज़िक पे सैक्रिफाइस कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट line says, she auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Auditioned means gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. तो हम audition देते हैं किसी चीज़ में पार्ट लेने के लिए, तो उन अपने एडमिशन लेने के लिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, दैट इज़ इन लंदन, उन्होंने एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दी, ऑडिशन दिया और हाईएस्ट मार्क्स उन्हें मिले, जो कभी भी एकेडमी की हिस्ट्री में इतने मार्क्स किसी ने भी स्कोर नहीं किए. सो एवलिन गेव एन ऑडिशन फॉर द एडमिशन टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड हर स्कोर वाज द हाईएस्ट इन हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. पूरी हिस्ट्री में कभी भी एकेडमी के अंदर किसी भी बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करे. नो अदर पर्सन हैड स्कोर्ड सच अ हाई स्कोर एज एवलिन डिड. ओके. द नेक्स्ट लाइन सेज, शी ग्रेजुअली मूव्ड from orchestral work to solo performances. Orchestral work means group performance, performing in a group of musicians, and solo means to perform single. So initially Evelyn perform करती थी group के साथ and she got well in her music, but जैसे जैसे वो अच्छी होती जा रही थी अपने म्यूज़िक में, she got confident और उन्होंने अकेले परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. she started performing alone. Okay. The next line says, at the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. तो जैसे जैसे उनके कोर्स 3 years का कोर्स था उनका, she had received all the top awards by the time she had completed her 3 years course at Royal Academy of Music. 3 years का जो कोर्स था उनका रॉयल अकेडमी म्यूज़िक में, जैसे जैसे वो कंप्लीट होता गया, वैसे वैसे उन्होंने सारे टॉप अवार्ड्स जीतती गई वो इन म्यूज़िक. ठीक है. लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन. इट सेज, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic achievement.
So this means that if anyone says that Evelyn has done something great, she does not acknowledge that. उन्हें नहीं अच्छा लगता था, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी जब कोई कहता था कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है. दिस इज़ दैट शी इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. ये शो करता है कि वो बहुत ही हम्बल इन नेचर थी, डाउन टू अर्थ थी. उन्हें नहीं अच्छा लगता था कोई उनकी तारीफ़ करता था, कोई बोलता था कि उन्होंने बहुत ग्रेट वर्क किया है, जस्ट बिकॉज शी कैन नॉट हेयर. सो उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद थी. शी डिडंट रिस्पॉन्ड टू एनी थिंग लाइक दैट. Okay, and there is a quote which says, if you work hard and know where you are going, you will get there. So Evelyn ये दो important things success के लिए कहती थी. This says that two important things for success are firstly hard work and secondly aim. तो पहली चीज़ तो हार्ड वर्क होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ थी एम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. शी सेज दैट इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू हैव एन एम, मतलब अगर आप मेहनत करोगे और आपका एक टारगेट है जहाँ पे आपको पहुँचना है, विच यू हैव टू अचीव, यू विल डेफिनेटली अचीव इट. आप ज़रूर से अचीव करोगे इफ़ यू विल वर्क हार्ड फॉर योर टारगेट. ठीक है, दिस इज़ वॉट शी यूज टू say. Okay, then the next line says, and she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. So most sought after means most popular, in demand थी अब वो. ठीक है. सो एवलिन ऑल्सो अचीव्ड हर गोल्स. उन्होंने वर्क हार्ड किया, शी वर्कड हार्ड, शी हैड एन एम टू बिकम द टॉप मोस्ट एंड द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड एंड शी डिड दैट. उनका एम था कि वो फेमस बनेंगी, टॉप मोस्ट वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बनना था उन्हें उनका, और उन्होंने अपने हार्ड वर्क से इस गोल को अचीव किया. शी गेन्ड मास्टरी ऑफ ऑलमोस्ट 1,000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो उनको अब इस डेट तक उन्हें 1,000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे. एंड शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट. आई टोल्ड यू परक्यूशनिस्ट वो पर्सन होता है जिसको बहुत सारे तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं. तो वो शी वॉज मल्टी परक्यूशनिस्ट. उनको 1,000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे. एंड शी वॉज मोस्ट पॉपुलर परक्यूशनिस्ट इन द वर्ल्ड. शी हैज़ अ वेरी बिजी स्केड्यूल. नाउ वो डिमांड में थी, वो बहुत फेमस बन गई थी, तो उनका जो स्केड्यूल था, जो उनका टाइम टेबल था, वो बहुत बिजी था. एवरी वन वॉन्ट्स हर. शी हैज़ प्रोग्राम्स एंड कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उनके स्केड्यूल में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहने लगी. ओके, सो I'm ending this video here. I want you to go through the video, go through the explanation, just learn the difficult words and difficult word meanings, and I will explain you further in the next video. Thank you.